Okay, welcome to another episode of Caves of Mumbai. So today we are going to explore Kanheri Caves and Mandapeshwar Caves. Uh, Kanheri Caves is situated in SGNP National Park. Sorry, no, not, not SGNP Caves, but Mandapeshwar Caves and Kanheri Caves. Before we talk about those caves, I want to say that Kanheri Caves is situated inside SGNP, and SGNP is Sanjay Gandhi National Park. But before we delve deeper into SGNP, what I would like to say is that I know that I switch between Hindi, English a lot of times. So, just like most of you, I am also a corporate mazdoor. And what happens to corporate mazdoor? You talk in English a lot of times. So, it basically happens. But I have sort of decided that we are going to go ahead with English only so that we can provide information to as many people as possible. But yes, I also recognize that do I know what I'm talking about? No. Do I have a brain which can remember a script? Also no. But as an engineer, I learned this trick a long time ago. We have this Perchi, which almost every single student uses, almost like every backbencher like us. पढ़ाई लिखाई तो मैं तो ज़्यादा कभी मन लगता नहीं था, but still. Anyway, there you see, I says again, happens. But yeah, let's just talk a little bit about SGNP right now. So SGNP was established in 1969. There were the thing about SGNP is that it houses a lot of animals, a lot of wild animals such as deers, leopards, and monkeys and whatnot. There's also an enclosure over here where you can see tigers and all sorts of other animals. We haven't really gone to the enclosure, so I can't really say much about it. But yes, the leopards of SGNP are famously known as the urban leopards. Why? Because of their common contact with the human beings all around the purview of Sanjay Gandhi National Park. Now, over here, if I talk about how to reach SGNP, you can take an auto from Borivali station, which is the closest one. It will take approximately 30 to 40 rupees for one auto. And once you get here, there's a 94 rupees per person charge to get in, and you can just stroll around the national park. For the what's that wildlife safari? Yeah, the wildlife safari has separate charges, which will be mentioned somewhere around there, or maybe in the description. We'll just figure it all out and keep you updated. Now, from here, what we're going to do is we're going to take a bus. Make sure that you carry cash. It will cost us about 20 rupees per person, and we will go from the entrance to Kanheri Caves. And once Kanheri Caves are done, we're going to move to Mandapeshwar Caves. Thank you for staying with us so far. Let's see you at Kanheri Caves. I forgot to update you guys one thing. Currently, we are in the summer season. The best time to visit SGNP is during the monsoon. All of this where we are standing will be covered with water, and it's absolutely beautiful. And क्या बोल रहा है? वापस बोल. अरे जानवर को मत खिलाओ खाना. अरे जानवरों को मत खिलाओ खाना कितने बार बोलिए बार बार बोल बोल के मैं खुद ही भूल गया भाई. So right now we are heading to Kanheri Caves, and in between the road or maybe the path, you can find a lot of stalls wherein you can get bhel, raw mango with spices, and to be very honest, this is one of my favorite pastime snacks, raw mango. And here we go, we're gonna enjoy this. Really good though, and we'll connect with you over there. Bye bye. चालू कर दिया. ओके. अबे ये जो गाली दे रहा है कोई. क्या होता है? ओके, तो बस से हम लोग अभी यहाँ तक आ चुके हैं कानेरी केव्स के एंट्रेंस पे.
यहाँ से थोड़ा मतलब 150-200 स्टेप्स होंगे जहाँ से हमको ट्रैक करके ऊपर जाना है. Talking a little bit about Kaneri Caves, it is one of the largest and the earliest Buddhist caves which have been found in the country. अब यहाँ तक पहुँचने के लिए आपके पास ऑप्शंस काफी हैं. एक तो हो गया बस, 10 रुपए पर पर्सन की टिकट होती है. दूसरा होता है आपके पास शेयर टैक्सी जिसका 50 रुपीज अप्रोक्सीमेटली होता है कॉस्ट. हम लोगों को तो 50 बोला, कुछ को 30 बोला, तो वैरी करते रहता है, बट वो एक ऑप्शन है. तीसरा ऑप्शन देख के एड़ा बनाते हैं इन शॉर्ट. क्या शक्ल देख के एड़ा हाँ, शक्ल देके येड़ा बनाते हैं. बनाते So, no prizes. The other way to come here is via buggies, which is run by SGNP only. 900 rupees per buggy. I guess that's good for family members who are coming here for a short picnic or a short trip. Now getting back to the caves, yes. So from what I can understand, टिकट बताओगे नहीं? बोला तो यार 10 रुपए का, कितने बार बोलूंगा? अभी नहीं बोले तुमने. बोला मैंने 10 रुपए की. अच्छा नहीं बोला तो चलो कोई बात नहीं, वापस बोल देगा. 10 रुपए पर पर्सन की टिकट होती है भाई, ठीक है. कैश लेके आना जरूरी. कैश लेके आना जरूरी है. यूपीआई और कार्ड वार्ड नहीं चलता है भाई. मैं खुद भूल जाता हूँ यार, मतलब याद ही नहीं रहता. पता नहीं लोगों को याद कैसे रहता है. Anyway, cave was constructed in 2nd century CE and construction was completed in 11th century CE. It's a Buddhist cave and a lot of details are mentioned over here which is like way too much for me to grasp और इसे एक वीडियो में रिलीज करना. तो आप जब भी यहाँ पे आएंगे तो make sure to read the entire update by ASI. And now we'll go up. साइज आर्कियोलॉजिकल Survey of India. Yeah. तो इतना हिस्ट्री हमको अगर पढ़ने में इंटरेस्ट होता तभी हमको इसके बारे में पता होता. नहीं अभी हम वो होते हिस्टोरियंस होते, हम आर्कियोलॉजी लाइफ में जी कॉर्पोरेट लाइफ में नहीं होते, आर्कियोलॉजी में होते. बट इंटरेस्ट है तभी हम लोग यहाँ पे हैं. अभी जाकर के इंटरेस्ट जागा है. बचपन में जागना चाहिए था वैसे, बट कोई बात नहीं. बचपन का प्यार बचपन का प्यार हमारा क्या था, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, वो तो अभी भी चल रहा है. फिजिक्स कोई बात नहीं. डांट फिर भी घर में बहुत पड़ती थी. बट एनीवे अभी हम यहाँ से ऊपर जाएंगे. लेट्स सी, चेक आउट द केव्स एंड विल शोकेस द पार्ट ऑफ द केव्स फ्री एज वेल. एंकर मारते आते हुए सच्ची मान ले. तो कोई नहीं. So this is cave number 1, huh? Yeah. Okay, let's come up. Okay, so this is cave number 1 and it's an unfinished cave. Why unfinished? नहीं लग रहा है यार. Look at the carvings. All of this has been carved between 2nd century CE and 11th century CE. Absolutely stunning. चलो आगे बढ़ते. चलो ऊपर हाँ इधर से भी चलो. मैं जा रहा हूँ. जा रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ. मेरे हाथ से ये नहीं. Wow. I'm just glad that I don't have a girlfriend at the moment. क्यों? She'll be pretty disappointed in my stamina. नहीं तो ये कौन सी केव नंबर है यार वैसे? यहाँ पे लिखा नहीं है. 17 आगे इधर अंदर आते हैं. ये काफी बड़ा है यार. That's what she said.
Now I can understand why it is called the largest Buddhist cave in the country. लास्ट टाइम जब मैं एलोरा देखा ना, हाँ, मैं कहता था कि नेक्स्ट टाइम जाएंगे अलोरा, औरंगाबाद जब जाएंगे तो। अच्छा, यहाँ से जा नहीं सकते? अच्छा, नो एंट्री, एक्सीडेंटल प्रोन एरिया। सीढ़ी चढ़ोगी। कुछ भी ये ऐड नहीं हो सकता वीडियो में। चलो So we are right now somewhere between cave 19 to cave 30. 30 है क्या? Cave number 20th. And यहाँ पे total 119 caves हैं. So it's, I feel कि if you are coming here, you should take approximately 4 to 5 hours of your day and explore each and every one of those caves properly. There's a lot of knowledge to be learned about the past of the country and how the Buddhists used to live. I feel there's a connection between Mahakali caves and the Kanheri caves to an extent. जहाँ तक मुझे पता है महाकाली केव्स में वो लोग रहते थे, वहाँ पे उनकी पढ़ाई भी होती थी और यहाँ पे भी मैंने देखा, कुछ लोगों से पूछा, क्लासरूम्स भी हैं यहाँ पे, तो आपको देखने मिल जाएगा, वो वीडियो में देखने मिल जाएगा आपको। एंड जिस हिसाब से कह रहे हैं कि इट्स लाइक एन इंटरट्वाइंड कम्युनिटी, एंड अभी के लिए तो यहाँ पे पेड़ जो है पीछे आप देखोगे तो सूख गए हैं, बट काफी ग्रीनरी है एंड ड्यूरिंग मानसून दिस इज वेरी लशियस। बट मुझे इस बात का डर भी है कि मानसून के टाइम पे ये जो पत्थर दिख रहा है ये सब थोड़ा वो हो जाएगा, स्लिपरी हो जाएगा, तो मे बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर विजिटिंग इन द मानसून। अभी हम लोग और एक दो केव्स एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे अपने लंच के लिए। तो लंच पे मिलते हैं फिर आपको। नहीं जाने का रीजन क्या है पता? तुम मेरा हेलमेट घुमा दियो। अबे मैंने तो घुमाया, हेलमेट तूने घुमाया यार। हेलमेट बाइक तुम चला रहे हो, हेलमेट तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं तो रिस्पॉन्सिबल होगा यार। कुछ भी खुद घुमाया, बकचोदी हो रही है, गलत बात है भाई। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, लेट्स एक्सप्लोर वन मोर केव्स एंड देन फिर हमको वापस जाना है। एज कौशल सेड, हेलमेट वही बाहर छोड़ गया है। चलो, और आई गेस ब्लैक जीन्स पहन के मत ही आओ तो बेटर है। अब एवरीवन जस्ट एग्जिट मार ही रहे एसजीएमटी से पार्किंग में। One important thing about parking is that the charges are 10 rupees per hour for two-wheeler and 35 rupees per hour for four-wheeler. As we were exiting the SGMT, हमने पूछा वहाँ पे बग्गी वाले को कि भैया क्या रेट है। We got to know that it is 50 rupees for just a small round of SGMT. ये आपको कान्हेरी केव्स तक नहीं लेके जाएगा। You only have two modes of travel inside them. One is bus, the second is shared cabs. बस का as I've said 10 रुपए पर पर्सन का टिकट है और शेड कैब्स का 30 to 50 रुपीज के बीच में वैरी करता है। That's it. अभी यहाँ से हम जा रहे हैं अपना लंच करने। लंच करने के बाद हम लोग जाएंगे मंडपेश्वर केव्स एंड विल सी यू एट आवर लंच स्पॉट। अब हम आ गए हैं मंडपेश्वर केव्स फ्रॉम कान्हेरी केव्स। खाने को कुछ मिला नहीं, दोपहर के 3 बज रहे हो, सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो गए थे
आई गेस प्लान बेटर इफ यू आर कमिंग हियर। सुबह सुबह 9:30 बजे आपका SGNP खुलता है। 9:30 बजे वहाँ जाइए, 4 घंटे वहाँ बिताइए, उसके बाद यहाँ पे आ जाइए। ओह क्रैप, भाई मैं भूल गया यार, सॉरी, खोल के देना। सॉरी, इंजीनियर हो तो थोड़ा चीटिंग करना जरूरी है मेरे लिए, बिना उसके काम नहीं चलता है। सॉरी। अबे तुम यार, मतलब वीडियो मत बिगाड़ो यार, तुम बार बार बीप लगाना पड़ेगा मेरे को। बट एनीवे, मंडपेश्वर केव्स इज एन 8th सेंचुरी, यहाँ पे 8th सेंचुरी क्या था, एक सेकेंड, इज एन 8th सेंचुरी रॉक कट श्राइन डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। Approximately 1500 to 1600 years ago बनाया गया था। It is believed that these caves were also carved out by the Buddhist monks who carved out Jogeshwari caves and Kanheri caves। वहाँ पे approximately same ही है आपका, the structure, the build and the art you can see, but ये cave ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। यहाँ पे बस 2 3 4 आपको points दिखेंगे जहाँ पे Buddhist used to sit down and give the message about Buddhism। और शिव भगवान का यहाँ अंदर एक श्राइन है जहाँ पे हम अभी जा करके अपना आशीर्वाद लेंगे, और उसके बाद फिर यहाँ से एंड करके होपफुली वी विल गो टू सम रेस्टोरेंट जहाँ पे खाने में कुछ मिले। बट चलिए अंदर का आपको पार्ट दिखाते एंड देन विल कंटिन्यू। वेट, यहाँ पे एंट्रेंस का कोई चार्ज नहीं है, ये दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आप यहाँ पे नियरेस्ट मेट्रो दहीसर मेट्रो स्टेशन पड़ेगा, एंड फ्रॉम देयर यू कैन टेक एन ऑटो और अ कैब। अब उसका चार्जेस आई फील अप्रोक्सीमेटली 90 to 150 तक जा सकता है। कितना जाएगा? ये जाएगा कम से कम 40-45 रुपीज मैक्सिमम। 40-45 रुपीज। आई बिलीव कैरी कैश, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैश। ओला से अगर आप आएंगे तो 150 रुपये तो लगेगा ही, बिकॉज एनी ऑफ लाइक कैब बिलिंग सर्विसेज आर प्रीटी मच little bit expensive than the local ones, but उसमें गारंटी रहता है सेफ्टी का। वाओ, Okay, so this is like a hall. I believe this is where the monks would sit down and do meditations and would eventually pass on the knowledge of Lord Buddha and the wisdom they receive from Lord Buddha। And यहाँ पे जितने भी आपके ट्रैवलर्स आते होंगे उनको थोड़ा डिटेल में इंफॉर्मेशन देना अपने रिलीजन के बारे में। आई गेस दैट इज व्हाट वी यूज्ड टू डू हियर। लिविंग क्वार्टर्स ऐसे ही लग रहा है, अंदर वॉइस बहुत एको हो रही है, सो इट डजंट रियली मेक सेंस टू गो इनसाइड, बट लेट्स सी। तो अभी हम लोग आ गए हैं सोडा लेन, बोरीवली का सोडा लेन में। हम लोग को खाने को तो मिला नहीं, कोई रेस्टोरेंट दिखा नहीं। शाम के 4:30-5 बजे हम लोग मंडपेश्वर के से निकले, उसके बाद कौन ही रेस्टोरेंट से खुला रहेगा। तो हमने सोचा क्यों ना आपको बोरीवली का फेमस सोडा लेन के बारे में बताएं, जहाँ पे आपको स्ट्रीट फूड बहुत अच्छे क्वालिटी। कौन सा? श्रीजी, हाँ, मतलब लेन के बारे में तो बता दूं पहले। यहाँ पे इस लेन में बहुत सारा आपको स्ट्रीट फूड मिल जाएगा, फ्रॉम सैंडविचेस टू चाट्स टू सेव पूरी टू भेलपुरी।
हम जिस स्टॉल का खाना खा रहे हैं उनका नाम श्रीजी है. दे आर फेमस फॉर मैक्सिकन. वही बोल रहा हूँ मैक्सिकन फ्यूजन फूड बोल रहा हूँ मेरे भाई. रुक जाओ, आई नो आई फंबल अ लिटिल बिट पर फिर भी इतना भी नहीं करता हूँ. तो अभी हमने अपने लिए मंगाया है पनीनी. ठीक है, पनीनी के बाद हमने अपने लिए स्पाइसीएस्ट सेव पूरी इन मुंबई का ऑर्डर दिया, जिसका हम अभी सेव पूरी है ना, क्या नाम है? हाँ, मैक्सिकन क्रिस्पी इज द नेम ऑन द मेन्यू. बट चलिए इसका ट्राई आउट करते हैं. एक बार क्लोजअप देख लीजिए. ओके, चलो लेट्स सी हाउ इट टेस्ट्स. थोड़ा मीठा है. अरे जो सॉस यूज किया है इसमें केचप तो नहीं है, दूसरा कोई सॉस है. मैं कंफर्म करके बताता हूँ. विद मेयोनीज काफी अच्छा. कॉर्न और इसका क्या नाम है, इसका ग्रीन कैप्सिकम का फ्लेवर अच्छा आ रहा है. चीज भी अच्छे से मेल्ट हुई है, जैसा कि आपने देखा. Really good. I think if you're living in suburban Mumbai, then you should definitely come out here. You should definitely try out their specialty cuisines and fusion food. Next, अभी ये ट्राई खत्म करने के बाद we just have the spiciest sev puri, aka the Mexican frisky of Mumbai. Let's see how I deal with that. I don't really deal well with spices, but let's see. चलो. ये कौन सा सॉस है? रोज चिल्ली का सर हरीसा सॉस होता है. हरीसा सॉस. मुंबई डोसा. Okay, that is a spicy sauce. और ये? ये स्पाइसी सॉस है. ये नॉर्मल स्पाइसी होता है. Okay. टेस्ट में फर्क आता है. Okay. इसमें थोड़ा हम खट्टा मीठा देंगे, टोमेटो सॉस डालेंगे क्योंकि होममेड होता है. इसमें थोड़ा सा हम इंडियन मसाले होते हैं जो हम लोग घर पे बनाते हैं. थोड़ा अच्छा. ऐड कर देंगे. इसके साथ में थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स ऐड करेंगे. थोड़ा सा ऑरिगेनो करेंगे. इसमें हमारा मिक्स वेजिटेबल होता है जिसमें Okay. कैप्सिकम, जैलोपिनो ऐड कॉर्न होता है. Okay. थोड़ा सा ऐड कर देंगे. और इसमें थोड़ा सा हम लोग गोल्डन चटनी ऐड करते हैं, थोड़ा टेंगी टेस्ट के लिए. गोल्डन चटनी. हाँ, क्योंकि राजकोट की चटनी होती है, थोड़ी सी इसमें ऐड करते हैं, वो टेस्ट में फर्क हो जाएगा. इस चटनी में क्या क्या होता है? इसमें से इस चटनी में क्या होता ये है? चटनी थोड़ा तीखी होती है, अलग होती है. तो जो राजकोट के गुजराती लोगों को फेवरेट चटनी होती है, Okay. ये थोड़ा सा खट्टापन होता है. Okay. टेंगी टेस्ट हो जाता है. ठीक है. इसमें टोमेटो रहता है, खट्टा मीठा हो जाता है. उसके साथ में ये एकदम स्पाइसी वाला नहीं है ना, जैसा हम पूरी स्पाइसी होता है. इसमें फिक्स के साथ है 1 प्लेट से. ये पूरा हो गया आपका. ग्रेवी तैयार हो गया. अब इसे कुछ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे. ये अब हमारा ग्रेवी अच्छी तरह मिक्स हो गया. That looks deadly. बराबर हो गया तो अच्छी तरह से. अब इसे हम पानी पे रख देंगे आराम से. अच्छी तरह पूरी पे आ गया. पूरा पूरी का क्या सर. इसमें चीज डलता है? आएगा ना. Okay. एक सेकंड रुको. बिल्कुल. अच्छी तरह से चीज को पैक करेंगे. चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे. चिली फ्लेक्स. ओके. बस ये आपका रेडी हो गया. ओके. मैक्सिकन फ्रिस्की इज रेडी. अब हमने अपने लिए मंगा लिया है मैक्सिकन फ्रिस्की, which is arguably the spiciest sev puri of Mumbai. Okay, मेरी थोड़ी पट रही है खाने में. Please have a closer look. And oh my God, let's see. ये रिकॉर्ड करना है आपको, ये खाने का इसका रिएक्शन. अबे यार तुम धराओ मत उल्टा यार. वेरी गो. हैव इट. मसाला गिरा दे तुमने चिकन के वाले खाना पड़ेगा. No.
पैसे नहीं है यार. और एक अलग Guess what got me? God. Hey, hit it from the back. Fuck. Will you eat it? Not spicy. Yeah, I need water. Need water which is colder than my excess heart. ना भाई ना उठाओ just उठा. Spicy. Oh, this is spicy, bro. Oh yeah. ये आपको क्या लगेगा बोल भाई बहुत स्पाइसी है यार. It's not that spicy when you eat it. So spicy आपका Mexican sushi खाने के बाद we're having some cool down with पानी पूरी. दो है तो मिक्स करके दो. So दिन भर घूमने के बाद फर्स्ट कानेरी केव्स, उसके बाद मंडपेश्वर केव्स, और फिर खाना नहीं मिला तो हम लोग ने स्ट्रीट फूड से काम चलाया. All I will say that it was not that spicy. I think I overreacted a little bit, but it was okay. I think that is the perfect amount of spice. जब लड़कियां कहती हैं कि भैया थोड़ा तीखा बनाना. So with this, we are now going to end our Caves of Mumbai series, and now we have come to a restaurant where we typically hang out, KD and I, for some adult juice. What's adult juice, kids? It's just Appy Fizz. Cheers. Cheers. एंड नेक्स्ट वीडियो हमारा कहाँ का होगा ये हमको नहीं मालूम. हम लोग प्लान करेंगे, देखते हैं. मोस्ट लाइकली इट विल बी अबाउट वीकेंड एस्केपेड्स फ्रॉम मुंबई. मॉनसून आने ही वाला है तो देखते हैं, बहुत सारे लोकेशंस ओपन अप होंगे. एंड बस दैट्स अबाउट इट. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. Let's keep But that secret. What, where and when are we going there? क्या? Let's keep secret. Yeah, we'll keep it a secret where we are going next. But yeah, this entire series was fun for us to record and to try to understand how content creation works. But the thing is that we are not yet experts on this. By any means, it would definitely help us if you provide us with some comments, constructive feedback, and let us know where we are making mistakes and how we can improve ourselves. कभी कभी I know I speak in Hindi, कभी कभी English हो जाता है ऊपर नीचे, बट कॉर्पोरेट मजदूर हूँ मैं भी आपके तरह, तो ज़रूरी है एक ही लैंग्वेज अच्छे से आती है, वो है इंग्लिश. तो लेट्स सी आगे और कितना इम्प्रूव कर सकते हैं. एंड विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय.